Good morning, student. My name is Rajsi, and I am going to teach you Science Class 6, Chapter Separation of Substance. So, let's start. Separation of solid. There are four methods of separation of solid. First, hand picking. Second, sieving. Third, winnowing. And fourth, threshing. Let's talk about hand picking. What is hand picking? Hand picking क्या होता है? Unwanted material mixed in food grains, pulses and other food items are separated by hand picking. हमारे फूड ग्रेन्स में, हमारे अनाज में जो अनवांटेड मटेरियल्स मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम हाथ से अलग करते हैं. उन्हें हम वो इतने ऐसे छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो हाथ से ईजिली सेपरेट हो जाते हैं. तो ये प्रोसेस कहलाता है हैंड पिकिंग. Example of hand picking are weeds from spinach are hand picked before it is cooked. Second example, stones are hand picked from rice before cooking. चावल बनाने से पहले जो उसमें छोटे छोटे कंकर होते हैं उन्हें हम हैंड पिक करके अलग सेपरेट कर देते हैं. स्पिनच पकाने से पहले उसके वीड्स को हम हैंड पिक करके अलग कर देते हैं. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हैंड पिकिंग. नेक्स्ट मेथड, सिविंग. Sieving is used to separate solid substance that differ in size. Sieving हम ऐसे वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस, दो सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करना होता है जो कि डिफरेंट होते हैं अपने साइज में. फॉर एग्जाम्पल, राइस फ्लोर इज sieved to separate any large particles including stones, small insects which is present in a food grain. That time we use sieving process. Hand picking and sieving both are very common in household process or day-to-day life. हर घर में बहुत easily ये देखने को मिल जाता है ये दोनों प्रोसेस. अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है विनोइंग. Now what is winnowing? It is an old method of separating chaff from grains and pulses. Chaff is outer covering of food grains. It's very simple method to separate lighter and heavier solid substances from a mixture. So these are three methods: hand picking, sieving and winnowing for separation of solid. And next method is threshing. So let's talk about threshing. When paddy, wheat or mustard crop are ready to stalks are cut and dried in a sun. The dried stalks are beaten to free the grains from the stalk. This process is called threshing. जब पैडी, वीट या मस्टर्ड क्रॉप रेडी हो जाते हैं तो फिर हम उसकी कटाई करते हैं और फिर कटने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता है. और जब वो सारे सूख जाते हैं देन बिटन टू फ्री द ग्रेन्स. फिर उसे पीटा जाता है उसे, ताकि उसके जो ग्रेन्स हैं उसे चाप से अलग हो जाए. एंड ये जो प्रोसेस होता है, जो स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिंग. Nowadays, machines called thresher are used to separate grains from a stalks. आजकल लोग मशीन से भी थ्रेसर प्रोसेस को, थ्रेसर कहते हैं उसे, इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं. इस थ्रेसिंग प्रोसेस को आजकल मशीन से भी किया जाता है. ये बहुत ही ओल्ड मेथड है. पहले किसान इसे खुद से किया करते थे, बट टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए भी मशीन्स बनाए गए. सो थ्रेसर्स इज़ अ टाइप ऑफ मशीन. लोग आजकल थ्रेसर यूज़ करके ये सारे प्रोसेस करते हैं. सो दीज आर द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से हम कैसे सेपरेट करें. उनके भी कुछ प्रोसेस हैं, उनके भी कुछ मेथड हैं जिनसे हम इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करेंगे. So let's talk about separation of insoluble solid from liquid. So first method is sedimentation.
Sedimentation allows the separation of undissolved solid particles from a liquid. If sand is added to a beaker containing water and left undisturbed for some time, sand being heavier than water and settle at the bottom of the beaker, as you shown in the figure. These undissolved parts which settle at the bottom of a liquid is called sediments. Sedimentation क्या होता है कि अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड में मिक्स होते हैं. जैसे आप मान जाओ सैंड और वाटर को मिक्स करते हो तो वो पहले सारे मिक्सचर्स मिक्स रहते हैं. देन थोड़ी देर के बाद जब आप उसको बिना हिलाए अनडिस्टर्ब किए रखोगे, उसको हिलाओगे नहीं, भी स्टिर नहीं करोगे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो जो सेडिमेंट पार्ट होता है, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो सेटल एट द बॉटम, वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है, पहले मिक्सचर को अनडिस्टर्ब वे में रख देना और देन जब वो सॉलिड पार्टिकल सेपरेट होके नीचे सेटल हो जाए तो दिस मेथड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. एंड अनडिजॉल्व पार्ट विच सेटल एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट्स. जो अनडिजॉल्व पार्ट होते हैं जो कि बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स. आपको यहाँ पिक्चर देख के मैं समझा रही हूँ. एक फर्स्ट फिगर में मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, फर्स्ट फिगर में सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है. देन वो अनडिस्टर्ब पार्ट डिस्टर्ब मतलब बिना उसे हिलाए हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो सैंड पार्टिकल्स है या जो सेडिमेंट्स है वो सेटल एट द बॉटम, वो बॉटम में सेटल हो जाता है, नीचे जाके जम जाता है. तो ये जो प्रोसेस है, पहले मिक्सचर वाटर और सैंड का मिक्स होना एंड देन थोड़ी देर के बाद सॉलिड पार्टिकल्स का सेटल हो जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. और जो नीचे जाके जो पार्टिकल्स बॉटम में सेटल होते हैं, जो रुक जाते हैं, नीचे ठहर जाते हैं, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड सेडिमेंट्स. Here is an definition of sediments. The undissolved part of which settle at the bottom of a liquid is called sediments. जो undissolved part होते हैं, जो नीचे जाके settle हो जाते हैं, that is called sediments. Our next process is our next method is decantation. Now let's talk about decantation. Decant means to gradually pour off liquid from one container to another without disturbing the sediments. सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए एक बर्तन से दूसरे बर्तन जब हम लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन. इसके डिफिनेशंस मैंने यहाँ पे बताया है. pouring ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे कंटेनर में डालना, दैट इज डिकेंटेशन. यहाँ पिक्चर देके आपको समझाया जा रहा है. फर्स्ट फिगर में वाटर में हम कुछ सैंड मिला रहे हैं, ठीक है, एंड सेकेंड कंटेनर में मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर नजर आ रहा है आप लोग को. थोड़ी देर के बाद सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है. अभी मैंने आपको सेडिमेंटेशन समझाया था. मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर जब नीचे सैंड सेटल हो जाता है, दैट इज सेडिमेंटेशन. तो थोड़ी देर के बाद उसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है. एंड जब एक बार सेडिमेंटेशन हो जाता तो देन हम एक कंटेनर से वाटर को दूसरे कंटेनर में डालते हैं. तो सेडिमेंट्स जो होते हैं नीचे, उन्हें बिना डिस्टर्ब किए हम अपर पार्ट में जो लिक्विड होते हैं उसे दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं. तो जो बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर को लिक्विड ट्रांसफर करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन. तो ये जो होल फिगर में आपको समझाया जा रहा है, दैट इज सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. जब भी हमें इनसॉल्युबल सॉलिड को किसी लिक्विड से सेपरेट करना होता है तो हम दो प्रोसेस यूज करते हैं. फर्स्ट सेडिमेंटेशन एंड सेकेंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन में एक वर्ड आता है सेडिमेंट्स, दैट इज अनडिजॉल्व पार्ट जो कि नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है. तो वो सेटल होने का जो प्रोसेस होता है दैट इज सेडिमेंटेशन. और डिकेंटेशन में क्या होता है कि सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हम लिक्विड को वन कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं. तो जब वो लिक्विड एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर होता है विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन. उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं. तो इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने का सिर्फ ये दो प्रोसेस है. फर्स्ट सेडिमेंटेशन, सेकेंड डिकेंटेशन. Third method to separate insoluble solid from liquid
is third filtration, and fourth is loading. Filtration is used to separate insoluble particles from liquid using a porous device called filter. A filtering device can be fine piece of cloth that is used to filter water or a specific paper used to filter liquid in laboratory. फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिससे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड से हम सेपरेट कर सकते हैं. तो उस वक्त वहाँ पर एक स्पेसिफिक डिवाइस हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिल्टरिंग डिवाइस. वो एक फाइन पार्टिकल्स होता है पेपर की तरह या क्लोथ्स की तरह. वो सारे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अपने ऊपर रख लेता है और जो लिक्विड होते हैं वो नीचे चले जाते हैं. तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर पे या फिल्टरिंग डिवाइस में सेटल हो जाते हैं. तो दैट इज फिल्ट्रेशन. ये भी एक प्रोसेस है सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने का. नेक्स्ट प्रोसेस है लोडिंग. The suspended particles from a mixture can be separated quickly by process called loading. Loading can be observed by adding alum to water containing fine particles, and it makes the solid particles heavy and then quickly settle at the bottom. A liquid contains extremely small insoluble particles. Such particles remain suspended in a liquid and take a long time to settle. देन उस वक्त हम क्या करते हैं, एक एलम यूज़ करते हैं. एलम का काम होता है कि वो हेवी पार्टिकल्स को, जो हेवी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको लाइट, वो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसे हेवी बना देता है. एंड देन वो क्विकली क्या होता है, नीचे सेटल हो जाता है. तो जो भारी चीज़ होगा वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा. तो एलम का काम होता है जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो उसको हेवी कर देना, एंड देन वो सेटल बॉटम में सेटल हो जाता है. और फिर हम डिकेंटेशन प्रोसेस से लिक्विड को हम सेपरेट कर लेते हैं. डिकेंटेशन प्रोसेस. फिल्टरिंग सच एज अ मिक्सचर इज स्लो प्रोसेस बिकॉज द टीनी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ब्लॉक द पोर्स ऑफ फिल्टरिंग डिवाइस. फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है बिकॉज जो फिल्टरिंग डिवाइस है उसके पोर्स को इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ब्लॉक कर देता है. देन वी यूज दिस प्रोसेस लोडिंग. तो लोडिंग का काम होता है, उसमें एलम जब हम मिक्स करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स हेवी हो जाता है और वो सेटल हो जाता है बॉटम में. देन हम ईजिली उसके लिक्विड को हम सेपरेट कर पाते हैं. दैट इज लोडिंग. और ये 4 प्रोसेस हैं जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं. योर नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ soluble substances from